এমস ওপিডির উদ্বোধন কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। অন্যদিকে জেএমএম একটি সংবাদদাতা সম্মেলন করে এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই কর্মসূচি স্থগিতের বিষয়ে কেন্দ্রের উপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। পার্টির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জালিয়াতির উদ্দেশ্য নিয়ে উদ্বোধন কার্যক্রম বাতিল করেছে। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এটি নিয়ে যেভাবে কেন্দ্রের মনোভাব ছিল তাতে এটিকে অঘোষিত আপাতকালীন অবস্থা বলা ভুল হবে না। এই ধরনের রাজনীতি যদি করোনার সময় ঘটে তবে কিভাবে কাজ চলবে? তিনি বলেছেন যে জেএমএম ভারত সরকারের এই কাজের তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে। पब्लिक डोमेन में और आपके प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें छपी कि एक जो वहां के स्थानीय सांसद है गोड्डा के निशिकांत दुबे जी, उन्होंने इस कार्यक्रम को स्थगित करवा दिया गया क्योंकि वो वर्चुअली नहीं फिजिकली उपस्थित रहना चाहते थे। माननीय सांसद का उद्दंडता हमने पहले भी जब गोड्डा का रेलवे स्टेशन का कार्यक्रम था उसमें देखा था। उसी उद्दंडता को फिर से दोहराने के लिए उनके द्वारा केंद्र सरकार पर दबाव बनाया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में, माननीय गृह मंत्री जी के संरक्षण में स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। জামশেদপুরে লকডাউন চলাকালীন চুরির ঘটনা সাংঘাতিকভাবে বেড়েছে। সাকচি বাজারে গতরাতে চোরেরা 4টি কাপড়ের দোকানের ছাদ ভেঙে প্রায় 4 থেকে 5 লক্ষ নগদ চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। সম্প্রতি জুকসলাইয়ের 25 লক্ষ টাকার কাপড় চুরির ঘটনা ঘটেছে এবং এখন সাকচি বাজারে এম মার্ট, ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড, অভিনন্দন এবং কুলপি কর্নার এই 4টি দোকান রয়েছে, যেখানে চোরেরা দোকানে লাগানো এসি সরিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ে এবং নগদ কাউন্টার থেকে লক্ষাধিক নগদ নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পাওয়ার পর এসপি কুমার গৌরব, সিটি এসপি সুভাষ চন্দ্র জাট এবং স্থানীয় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি তদন্ত শুরু করে। चोरी की घटना है, बढ़ना इज नॉट अ फैक्ट। ठीक है, चोरी हुई है, लेकिन अगर आप पिछले साल से तुलना करेंगे और पिछले साल से तुलना करेंगे तो पुलिस ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा के 1975 সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া আপাতকালীন পরিস্থিতির প্রতিবাদে বিজেপি জামশেদপুর মহানগর শুক্রবার কালো দিবস পালন করে। আপাতকালীন পরিস্থিতিকে ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে বর্ণনা করে বিজেপি নেতারা সাকচির জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণকে শ্রদ্ধা জানান। এই উপলক্ষে আপাতকালীন পরিস্থিতির সময় জেলে যাওয়া দলের জাতীয় সহসভাপতি সহ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস সহ অনেক গণতন্ত্র সেনানীরা আপাতকালীন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। ভারতকে লোকতন্ত্র पर एक काला अध्याय लिखा गया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आने वाली पीढ़ी को जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास में जो लोकतंत्र के साथ के ऊपर धब्बा लगाया कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, और 1975-76 में लोकशाही इमरजेंसी लगने के बाद खतरे पर हो, ऐसा लगता था कि लोकतंत्र के स्थान पर परिवार तंत्र स्थापित हो जाए, लेकिन देश के सारे लोकतंत्र प्रेमी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अनेक सामाजिक संगठन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस की लोकतंत्र का परिवार तंत्र में जो बदलने का षड्यंत्र था वो सफल नहीं।
কল্যাণের বৃহত্তম সরকারি হাসপাতাল এমজিএম হাসপাতালের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এএন ঝা বলেছেন সেটির 100% চিকিৎসা সম্ভব। হাসপাতালের সভাগারে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ভিটিলিগো ডে উপলক্ষে এক সেমিনারে তিনি এই কথা বলেন। ডাক্তার ঝা বলেছেন যে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এর চিকিৎসা 100% সম্ভব। তিনি এটিকে ত্বকের রোগ হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন যে রোগীর লক্ষণগুলি দেখা দেওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা করানো উচিত, যাতে সময় মতো এটির চিকিৎসা করা যায়। ডাক্তার ঝা বলেন যে মানুষের মানসিকতার বিকার দূর করার উদ্দেশ্যে বিশ্বজুড়ে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা ওয়ার্ল্ড ভিটিলিগো ডে উদযাপন করেন, যাতে সেটি সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণাটি সমাজ থেকে দূর করা যায়। ये जो बीमारी है ऑटो इम्यून डिजीज है, किसी को भी हो सकता है। इस बीमारी में सिर्फ चमड़ा में दागी आता है, अंदर में कुछ नहीं होता है। ये एक सामाजिक जो है ना, इसको सामाजिक ये से देखा जाता है कि नहीं ये ठीक बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ये जो विश्व समुदाय था चर्म रोग विशेषज्ञ का, उन्होंने सोचा कि इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए कि ये वास्तव में कुछ नहीं है, एक छोटा सा स्किन का डिफॉर्मिटी है जो कहीं कहीं स्किन उजरा हो जाता है। ये कोई खराब चीज़ नहीं है और इसकी जो इलाज है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है अत्याधुनिक तरीका से। इसका आजकल 90 to 95% क्योर रेट हो गया है। Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 90733229। গত 9 বছর ধরে 4 সন্তানের মা এখনো পর্যন্ত সুবিচার পাননি। সুবিচারের আশায় তিনি তার ছোট বাচ্চাদের নিয়ে প্রতিদিন ডিসি ও এসএসপি অফিসের চক্কর কাটছেন, কিন্তু শোনার মতো কেউ নেই। পুরো পরিবারটি 3 নম্বর শাস্ত্রীনগর ব্লকের বাসিন্দা তল্লুল্লাহ আনসারির বাড়িতে বাস করত। তবে বাড়িওয়ালা 2020 সালে নবাব মোহাম্মদকে বাড়িটি বিক্রি করে দেয়। হঠাৎ করে 2020 সালের মে মাসের গভীর রাতে মোহাম্মদ নবাব ছোট বাচ্চা সহ স্বামী ও স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং স্বামী প্রতিবাদ করলে তাকে সাংঘাতিক মারধর করা হয়। পুলিশ এসে একটি মামলা দায়ের করেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সুবিচার পাওয়া যায়নি। এই পরিবারটি কেবল গৃহহীন হয়ে পড়েনি, তাদের বাড়িতে রাখা লক্ষাধিক মূল্যবান জিনিসপত্র দখল করা হয়। এখন এই পরিবার ছোট বাচ্চাদের নিয়ে পুরানো বাড়ির সামনে একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর তৈরি করে রাস্তার ধারে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। पेट्रोल डालेंगे अपना पर दोनों बच्चा का पर अपना बीवी के ऊपर डाल के चारों जन खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, यही चाहते हैं। कहाँ रहते थे? शास्त्री नगर में रहते थे, ब्लॉक नंबर 3 में। अच्छा, तब वो घर क्या? हाउस नंबर भी 3 ही है वो। अभी वो घर बिल्डिंग बन गया, बिल्डर खरीदा, वो हम लोग उस घर से बर्बाद किया, निकाल दिया। घर खरीदा था, मेरा सामान नहीं खरीदा। हर एक भाड़ा भी उसका बाकी नहीं, कोई भाड़ा कोई बाकी। तो घर किसका था? घर था सनुल्लाह अंसारी का। सनुल्लाह अंसारी उसको नवाब मोहम्मद को बिक्री कर दिया। वो उसके बाद में वहाँ से हमको निकाल दिया। घर से आधा रात को हमको निकाला, बिना पूछा दिए सब। एक जोड़ा में हम लोग घर खाली करके चले गए। बोला सामान देंगे, सामान नहीं दिया। दूसरा दिन आए हम लोग, 15-20 दिन तक सामान घर में था ही नहीं, सब तोड़ फोड़ रहा था घर को। तोड़ फोड़ के मेरा सामान हटा दिया। कब ये भगाया आपको? हमको भगाया वो हो गया है कम से कम 9 साल तो हो ही रहा है। तब से ही प्रशासन का चक्कर हम लगा रहे हैं। मार के मेरा आदमी को भी फेंक दिया था। कदमा थाना आया, उठा के लेके गया, एनजीए में भर्ती कर दिया। फिर हम लोग आए, हम लोग छोड़ दिए थे सब कुछ कि चलो भूल जाएंगे, छोड़ो सब कुछ। पर हद से ज्यादा फिर कोर्ट में जब बोले परेशान करने लगा, हम लोग कोर्ट में गए, हम केस किए उसके ऊपर कपड़ा केस के लिए। तो
सामान के लिए केस किया तो एग्रीमेंट किया 4 लाख रुपया का, बोला देंगे। वकील ने मिल के केस भी करवाया मेरे से सब कुछ काम, पर 1 रुपया नहीं मिला। सारा ओरिजिनल कागज घर में और सब कागज पत्तर मेरा पास। प्रशासन आपको कितना सहयोग किया? प्रशासन हमको कोई सहयोग नहीं किया। बोला था पैसा दिलाएंगे, एसपी आनंद कुमार बोला दिलाएंगे पैसा तुमको, पर कुछ नहीं दिलाया। জামশেদপুরের উত্তর শুনশুনগড়িয়া পঞ্চায়েত ভবনে ওই এলাকার বিধায়ক মঙ্গল কালিন্দী টিকাকরণের পরিদর্শন করতে পৌঁছান এবং আরও বেশি সংখ্যক লোককে টিকাকরণ সম্পর্কে অন্যান্য লোকেদের সচেতন করার জন্য আহ্বান জানান। এই সময় পঞ্চায়েত ভবনে এই ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য লোকেদের ভিড় উপচে পড়ে। 18 থেকে 44 বছর বয়সের অফলাইনে টিকা দেওয়ার কারণে প্রচুর সংখ্যায় লোকেরা পঞ্চায়েত ভবনে পৌঁছায়, যেখানে বিধায়ক ভ্যাকসিনেশন কেন্দ্রে পৌঁছে জনগণের কাছে সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করে এই ভ্যাকসিনটি নেওয়ার আবেদন করেন। क्योंकि उसके लिए हम लोग प्रत्येक पंचायत में जाके घूम घूम के गांव में जो है सबको जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन लेना जरूरी है, और शहर के लोग में जागरूकता है, इसीलिए जो है वो लोग वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो जो सरकार का गाइडलाइन है वो गाइडलाइन को देखते हुए और सब जागरूक है, वैक्सीन लेने के लिए आए हैं कि हमको वैक्सीन मिलना चाहिए। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके लोग यहाँ में वैक्सीन ले रहे हैं। সদ্য ঘটনাটি রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি ধুরবা এইচইসি অঞ্চল খিজড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের রাজেশ কচ্ছপ এখানের বিধায়ক। লোকেরা তাদের বিধায়কের সন্ধান করছে যাতে তারা এই কঠিন সময়ে সাহায্য পেতে পারেন। তবে পুরো করোনার সময়কালে বিধায়ককে নির্বাচনের জয়ের জন্য দেখা যায়নি। যদিও তার প্রতিনিধিদের কখনো দেখা গিয়েছিল, তবে তাদের এখানকার লোকেদের সাহায্য করতে দেখা যায়নি, বা জনগণের সমস্যা নিয়েও তাদের জনসাধারণের সাথে এই অঞ্চল পরিদর্শন করতে দেখা যায়নি। এরপর এইচইসি এলাকা ধুরবা এলাকার লোকজন তার নিরুদ্দেশের পোস্টারটি এই অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়, যার মধ্যে লেখা আছে যে এখানে বিধায়ক নিখোঁজ রয়েছেন। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি বলেছেন যে এটি কেবল একজন বিধায়কই নয়, বরং ঝাড়খণ্ডের ক্ষমতাসীন দলের সমস্ত বিধায়কেরই একই অবস্থা। কংগ্রেসের বিধায়করা এলাকার মানুষের সমস্যাগুলি ছেড়ে দিল্লিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য ব্যস্ত রয়েছেন, যাতে তারা নিজের জন্য মন্ত্রীর পদ বা কর্পোরেশন চেয়ারম্যান পদ লাভ করতে পারেন। কংগ্রেস বিধায়ক রাজেশ কচ্ছপ বলেন, এটি যদি জনসাধারণের বার্তা হয় তবে আমি তাদের অভিযোগ করার সুযোগ না দেওয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি তিনি এই বিষয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকেও অস্বীকার করেননি এবং বলেন যে অভিযোগটি ভিত্তিহীন। ये जो है सबसे बड़ी बात है, ये मतलब पूरा भारतवर्ष में सबको मौलिक अधिकार है एक स्वतंत्रता का। उनकी कुछ इच्छा नहीं पूरी हुई जिसके वजह से वो अपना इस तरह से विचार व्यक्त किए। मैं उनको भी यही बोलूँगा कि आप जो भी चीज़ किए हैं आप उस मतलब विधायक जी के बारे में पूर्ण रूपेण जान लीजिए, उसके बाद इस तरह का कोई भी कमेंट्स करें। विधायक से नाराजगी है, कभी क्षेत्र में नज़र नहीं आते हैं, और क्षेत्र में नज़र नहीं आने के बाद उनका प्रतिनिधि भी कभी कभी हालचाल, जैसे कि हम ही लोग यहाँ देखिए अभी बीजेपी के पूर्व विधायक थे राम कुमार पाहा जी, वो कम से कम 300 दिन घूमते थे, हाल चाल पूछते थे, कुछ हो नहीं हो उसे नहीं मतलब। आजकल तो सब राजनीतिक पार्टी झूठ सच बोलते रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी फील्ड में कभी नज़र हम लोग को नहीं आया। के प्रति जवाबदेही है मेरी, जब उस जवाबदेही से मैं भाग नहीं सकता। हो सकता है एक पॉलिटिकल रंजिश हो सकती है या पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता हो सकती है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं उन तमाम चीज़ों का सम्मान करता हूँ। अगर जनता ने कहा है तो मैं निश्चित तौर से, अगर मुझसे अगर कहीं चूक हुई हो तो मैं उस पर सुधार करने का प्रयास करूँगा। लेकिन अगर कोई पर्सनली पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता अगर दिखाई हो तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपने क्या किया कोरोना काल में। देखिए, खिजड़ी के विधायक राजेश कच्छप जी का जो पोस्टर पूरे तरीके से उनके क्षेत्र में चिपकाया गया है, उसमें साफ है कि वो अपने क्षेत्र में दिखते नहीं है, जनता की समस्याओं के प्रति वो सजग नहीं है। पर सिर्फ उनकी बात नहीं करें, अभी महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उनके सारे विधायक ऐसा लगता है कि गायब हो गए हैं जनता के बीच से और अपने गेटिंग सेटिंग में लगे हैं। अभी 2 दिन पहले कोल्हान क्षेत्र के एक विधायक टेंडर मैनेज करने के लिए रांची आए थे। जाहिर तौर पर वो अपने क्षेत्र से लंबे समय से गायब हैं। इसी तरीके से एक मंत्री जी का भी फोन का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो टेंडर मैनेज करने की बात कर रहे थे।
कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो वो जन समस्याओं को छोड़कर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को छोड़कर दिल्ली दरबार की हाजिरी लगा रहे हैं ताकि उन्हें मंत्री का पद और बोर्ड निगम में मलाईदार पद मिल सके।